One thing which I've learned is you can't pour from an empty cup. It has happened to me where I was so burned out कि I was actually thinking of leaving tech. How do you distinguish between this is just a bad week or I'm burnt out? क्या बोलते हैं, एक फीलिंग चेंज आनी शुरू हो जाती है कि आई एम वेकिंग अप विद अ फीलिंग कि शिट यार आज फिर से कोड करना पड़ेगा क्या. It builds up over time like rust. भाई मतलब you start hating everything when you discuss this with your parents or friends. It's like a foreign concept कि It's a भाई very hard conversation to have. it was all part of कि अच्छा मुझे अपना जो रैम में इतनी सारे प्रोसेस चल रहे थे मेरे दिमाग के रैम में सब बंद करना है, सब क्विट करना है कि I can relate to that too much, and maybe a lot less people talk about this, but this is Breaking Prod, where developers ditch the script and tell the real story. I'm Vivek, and in every episode, we dive into the moments which do not make it to the release notes. The wins, the weird pivots, the human mess behind those clean commits. If you're someone who's building and breaking or just figuring it out, welcome home. And if this is your first time tuning in, you're listening to part 2 of our mini-series called Standing Out as a Developer. So we talked about visibility, communication, and how to make your work speak for yourself online, how to post. But to be honest, one thing which I've learned is you can't pour from an empty cup, right? And if you're doing so much, it is important to know when you should step back and reassess and recalibrate before you like push forward and hustle, right? And the problem with that is it's very hard to do that because एक बार flow बन जाता है फिर इंसान उसी में निकल जाता है, ठीक है? And then they don't know where to stop and they are not able to recognize any signs which like their body or their environment is telling them कि भाई थोड़ा थम जा, थोड़ा हो गया, ठीक? And that becomes very hard and overwhelm in today's tech world where things are moving so fast. It's, I think, very constant. Have you seen like something happen to you before, and how do you distinguish between this is just a bad week or I'm burnt out? I think there is definitely a difference between a bad week and क्या बोलते हैं अपना burnt out. A lot of people actually are not able to recognize it क्योंकि अब वो लगता है ना कि अच्छा काम तो करना ही है. मतलब there is no like backfoot पे कैसे आए, मतलब how do you recuperate from it. मतलब it has happened to me where I was so burned out कि I was actually thinking of leaving tech कि कोड करने का ही मन नहीं है मेरा. एंड उस वक्त ऐसा हो गया था कि भाई मतलब बॉडी बोल रही है एंड mentally I was in such a let's say slump. It was just कि it was all signs pointing me कि भाई अगर इससे निकलना है just have to take a pause. एक hard pause लेना पड़ेगा क्योंकि नहीं हो रहा है. And I feel that's like from a perspective कि privilege take है मेरा ये कि I was earning good enough उस वक्त कि I was able to think this. Definitely burnout is not something which I feel कि वो अचानक से ऐसे आ जाएगा. So how did you start catching those signs of burnout when you were working? I think I just मतलब सुबह उठ के ऐसा लगता नहीं था कि मतलब I am very passionate about software engineering. I am still in this field because I am passionate about it. तो एक वो क्या बोलते हैं एक फीलिंग चेंज आनी शुरू हो जाती है कि आई एम वेकिंग अप विद अ फीलिंग कि शिट यार आज फिर से कोड करना पड़ेगा क्या, या आज फिर से काम करने पे जाना पड़ेगा क्या. मतलब आई हेट दैट फीलिंग बिकॉज आई डोंट वांट टू बी इन दैट फीलिंग कि उस स्टेट में नहीं होना है मुझे कि जहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि अच्छा मुझे कोड ही नहीं करना है. एंड दैट एक्चुअली डेवलप्ड इन अ स्लोली एंड स्टेडीली कि अच्छा चल एक हफ्ता बुरा जा रहा है, 2 हफ्ते चले गए, 3 हफ्ते चले गए, 1 महीना चला गया, 3 महीने चले गए. एंड आई एम लाइक कि why am I losing my zeal for let's say coding या काम करने के लिए. मतलब why is this happening to me? It builds up over time like rust, right? कि एक मतलब आयरन के ऊपर रस्ट लग रहा है तो धीमे धीमे before like that iron has got brittle from inside and then वो एक झटके में टूट जाएगा. And on the contrary also I was actually gaining a lot of weight उस वक्त. So I gained almost like I was 80 kgs उस वक्त. Okay. 80-85 which is too much for me क्योंकि I have always been a slim guy. ठीक है. I was just always frustrated so much कि मतलब चिड़चिड़ाहट से नहीं आ जाती है हर चीज़ से कि every small thing triggers let's say a breaking point for you. These were the few signs जहाँ पे मुझे लगा कि यार मतलब I need to take like reflect करना पड़ेगा यार क्या हो रहा है, मतलब what is this, I don't want to be
क्योंकि यार आई फील कि work is something that you do for the maximum part of your day and you should enjoy it. And I chose software engineering because पसंद आता है यार, मतलब करना है, मतलब ठीक है मुझे करना है, वो मुझे मज़ा आता है. एंड अगर मेजॉरिटी ऑफ द डे मैं अगर चिड़चिड़ा हूँ Yeah, I mean 8 hours तो चलो ठीक है. I'm not sure if anyone is able to cut at 8 hours, and definitely it spills before and after. Yes. है ना? Most people I'm talking to definitely are कहीं अगर वो ऑफिस में नहीं है ना तो उनके दिमाग में है कहीं ना कहीं वो चीज़. एंड देन यू हैव टू फिक्स दैट फर्स्ट. इफ यू आर अगर वो 8 घंटे खराब जा रहे हैं तुम्हारे दिन के तो क्या बचा फिर तुम्हारे पास. लाइक हाउ विल यू हैव फाइंड एनर्जी फॉर द अदर part of it? भाई मतलब you start hating everything. I think वो cynicism is one of the early signs which I feel. मतलब I have been there before, so I know कि उस समय जो तुमने बोला चिड़चिड़ाहट वाला चीज़, that is very, I can relate to that too much, and maybe a lot less people talk about this, but when you start feeling कि you don't feel the excitement, एक तो वो चीज़ तो है ही है, but अगर तुम मतलब किसी तरह से ऑफिस पहुंच भी गए हो एंड उसके बाद तुम्हें हर चीज़ पे क्रिप करना पड़ रहा है, दैट इज लाइक आई थिंक वेरी क्लियर साइन. इट वाज फॉर मी. मतलब मैं ऐसे हो रहा था कि हर चीज़ पे क्रिप कर रहा हूँ कि ये भी अच्छा नहीं है, गंदा लेगेसी कोड लिखा हुआ है, इस तरह से कौन काम करता है, इस तरह से क्यों लिखा हुआ है. एंड आई वाज लाइक वेरी इरिटेटेड विद दैट, एंड दैट वाज नॉट बिकॉज आई डिड नॉट हैव द कैपेसिटी कि मैं इससे डील नहीं कर सकता हूँ. आई वाज लाइक मैक्सिंग आउट माई सेल्फ, राइट. मेंटल बैंडविड्थ चली जाती है. हाँ, बैंडविड्थ खत्म हो चुकी है, अब ऑप्शन ही नहीं है. मतलब अभी द नेक्स्ट ऑप्शन इज लाइक सर्वाइवल, राइट. अभी वहाँ पे मैं सर्वाइव करना चाह रहा हूँ बस किसी तरह से. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट इग्नोर दिस वेरी इजीली बिकॉज इट्स वेरी इजी टू इग्नोर, राइट. द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज टू रिकॉग्नाइज देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट. एंड when you were at that phase, right, how did you decide to fix that? Like, did you have like an epiphany ki ab bahut ho gaya bhai, now I need to fix this? And how did you go about doing that? Sure. तो सबकी तरह जो फटती है मेरी फटी हुई थी कि सबैटिकल लूंगा. रिज्यूम में क्या आएगा, गैप लिया मैंने. शीश भाई, ठीक है कि अब मैं अच्छा एचआर को क्या बोलूंगा, अगर अगली कंपनी में ज्वाइन करूंगा तो एचआर को क्या बोलूंगा, मतलब हाउ इज दिस गोना बी परसीव्ड एज. एंड लकीली आई वाज जस्ट पार्ट ऑफ दिस डिस्कॉर्ड ग्रुप टीईओ करके, द इंजीनियरिंग ऑर्ग एसवीएस का है. अच्छा. तो आई वाज जस्ट पार्ट ऑफ इट एंड आई वाज टॉकिंग टू एसवीएस ओनली. तो आई वाज जस्ट टेलिंग कि भाई नहीं हो रहा यार, मतलब he was taking off because of this his take on sabbaticals and all. So I was like, I went to him, had a chat with him, couple of chats, and then we went on a, let's say, call. I was just looking for some validation कि भाई it's okay to take a sabbatical, to be honest. क्योंकि मुझे पता मेरी फटी पड़ी है, मुझसे काम नहीं हो रहा है. हाँ, मतलब that's an insane thought. मेरे तो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है because you took a sabbatical and shit. Okay. So it's like asking for a validation from someone senior to you. कि it's okay, अगर तुमने sabbatical ले भी लिया तो it's okay, मतलब figure out हो जाएगा बाद में करियर, मतलब तुम्हारी लगेगी नहीं करियर वाइज कुछ ऐसा. ठीक है. तो went on a call with Siddharth. He almost forced me कि उस वक्त रिजाइन कर दूँ. मेरी इतनी फट गई, मैंने बोला नहीं अभी करता हूँ, मेरे को अभी करता हूँ, मेरे को आफ्टर, मतलब मैंने बोला कि अभी वीडियो कॉल करता हूँ. बट आई थिंक वो होता है ना कि क्लिफ से जंप मारने के लिए धक्का चाहिए होता है, तो इट्स जस्ट दैट ही गेव मी दैट बूस्ट एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, टू बी ऑनेस्ट. ही गेव मी दैट बूस्ट एंड आई वाज एबल टू टेक दैट प्लंज. क्योंकि when you discuss this with your parents or friends, it's like a foreign concept कि भाई, it's a very hard conversation to have. वही मतलब तुम क्या बोलोगे कि अरे मतलब गैप लेने की सोच रहा हूँ, क्यों लेना है, काम करने का मन नहीं कर रहा है. So how was your sabbatical experience? I want to know more about it now. This is too good of a story not to tell. तो I took sabbatical around September 2023. तब मैंने तो notice period serve करके mostly I took a break and I just joined a gym a month before taking a sabbatical. तो I was in the zone कि अच्छा नहीं अब gym करना है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा कुछ बड़ा मेरे ब्लर मार्केट में तो भाई सीन ही नहीं बचेगा कुछ. तो I had to hit the gym. I had to just, मैं gym गया and वो रहता है कि अच्छा you are now, अगर मैं बैंगलोर से फिर घर शिफ्ट हो गया था ग्रेटर नोएडा में.
लिविंग विद माई पेरेंट्स. तो इट वॉज मोर लाइक कि आई फेल्ट कि आई नीड टू गो आउट एक्सप्लोर लिटिल. मतलब थोड़ा सा वो ट्रैवलिंग वाला फेज आ गया. थोड़ा खुद को ढूंढ रहा हूँ खुद मैं. को ढूंढ रहा हूँ. फिर वो इलाही वाला गाना Oh my फील आने God. लगा दिया. Like every Imtiaz Ali, you are feeling like a main character in Imtiaz Ali movie. मेरा गोल था ही नहीं कुछ उस वक्त. मैंने अपने आप पे प्रेशर नहीं डाला कि अच्छा कुछ करना है मुझे. द ओनली थॉट वाज जो करने का मन है वो कर. मैंने ऐसे फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर रखी थी कि अच्छा सबैटिकल के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करी. बट आई हैव बीन गुड विद माई लेट्स से सेविंग एंड ऑल. कि आई लोकेट मतलब पैसा निकाल लिया साइड में कि अच्छा दिस इज माई ये मेरा खर्चा है एंड ये सारा सेविंग में जाएगा. सो आई हैड दैट थिंग built in me from the start. I think that helped me a lot क्योंकि फिर मुझे वो था कि मेरे पास क्वेश्चन है. I could ऐसा नहीं कि अच्छा मम्मी पापा के पैसों पे पूरा जी रहे हैं मस्त घूम रहा हूँ. That was not the case in mine. But how long was the sabbatical? 8 months, 7-8 months. भाई क्या किया तुमने 8 महीने? What was your routine? I mean definitely you were going with the flow and you were like कि जो भी मैं करना होगा करूँगा. But कुछ तो एक रूटीन बना होगा ना इवेंचुअली लाइक कि अब ये करते हैं ये कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. सो इट स्टार्टेड ऑफ एज सच कि जब मन करा तब उठो. दैट इज जस्ट यू ट्रीटिंग योरसेल्फ. हाँ कि मतलब इट्स क्या बोलते इट वाज अ थिंग कि अच्छा थोड़ी फट सी रही थी कि बहुत ज़्यादा खाली हो गया क्या. तो जब उठना है तब उठो. मोस्टली गो टू द जिम में 6-7 महीने जो भी था 6 महीने में जिम गया हूँ. 3 महीने मैंने MMA की ट्रेनिंग ली जस्ट टू. तो फिटनेस बिल्कुल ऑन टॉप नॉच थी उस वक्त मेरी. लाइक आई थिंक आई हिट माई मतलब 65 kgs पे आ गया था मैं 80 से. तो लाइक रियली गुड लाइक गुड रिडक्शन भाई. गुड रिडक्शन एंड आई थिंक आई पफ्ड अप अ लिटिल कि वो जो मसल्स होती हैं जो आई वांटेड तो वो भी हो गई थी. तो आई कॉन्टिन्यूसली went to do the gym and then MMA training. But उसके बाद I was for the first 3-4 months I was like अच्छा मैं movies देख रहा हूँ, scrolling through Twitter, social media, reading books. I started actually reading books थोड़ी सी like fiction books, not non-fiction वो self-help वाली books नहीं या technical books नहीं. I was just reading fiction books उस वक्त. I was like trying to get away from phone. तो ऐसा था कि मैं फ़ोन को स्विच ऑफ करके रख दिया जाता मैं. एंड मैं मोस्टली मैं ऐसा बीच में दोपहर में थोड़ा यूज़ कर लिया, रात में यूज़ कर लिया. तो आई जस्ट स्टार्टेड बीइंग माइंडफुल ऑफ माई मोबाइल यूजेज. लाइक आई डिस्कनेक्टेड विद द वर्ल्ड काइंड ऑफ अ थिंग. इट वॉज ऑल पार्ट ऑफ कि अच्छा मुझे अपना जो रैम में इतने सारे प्रोसेस चल रहे थे मेरे दिमाग के रैम में सब बंद करना है, सब क्विट करना है कि. तो स्टार्टिंग में ऐसा रहा बट बीच में आई वाज लाइक कि अलग अलग जगह पे घूमने चला गया मैं. ऐसे 1 हफ्ते 2 हफ्ते में चला गया बाहर. कहाँ घूमे तुम? तो आई थिंक कोडाईकनाल, कुर्ग, आई वेंट टू ऋषिकेश, मेघालय और 2-3 जगह मैं भूल गया हुई. लेकिन आई ट्रैवल्ड अ लॉट उस वक्त. उज्जैन गया था, हाँ. हैदराबाद गया था दोस्त के पास. तो आई ट्रैवल्ड अ लॉट जस्ट टू यू नो फ्रेशन माई सेल्फ अप. कि थोड़ा वो रहता है ना कि व्हेन यू ट्रैवल एक्चुअली थोड़ा सा वो हो गया, बहुत ज़्यादा ही मेन स्ट्रीम सी चीज़ हो गई. बट थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज होता है तुम्हारा फ्रॉम ट्रैवलिंग. यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स कि भाई तुम्हारी जो दिक्कतें हैं वो बहुत छोटी सी हैं. मेरा फार्म मतलब मेघालय में गया मैं, आई वाज मतलब इवन वहाँ पे तो इंटरनेट बहुत बड़े मुश्किल से रहता है. अच्छा. बहुत लो. I've never been to like northeast. I want to go. It actually healed me भाई. मतलब oh my god. मेघालय इज़ अ रियली ब्यूटीफुल प्लेस विद रियली ब्यूटीफुल पीपल. मतलब बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे लोग हैं वहाँ पे. मेघालय ट्रिप वॉज द टर्निंग पॉइंट, मतलब कंप्लीट टर्निंग पॉइंट. और उसकी प्लानिंग पता कैसी थी? Jan 2024 था एंड न्यू ईयर हो गया था. अराउंड 3 or 4 Jan मेरे को मन करा कि मेघालय अब जाना ही है. मैंने बुकिंग करी. हाँ. Is it like cold there? हाँ, इट्स कोल्ड. इट्स कोल्ड देयर. Okay. उतना तो कोल्ड नहीं कि अच्छा जम जाओगे, बट इट्स लाइक दिल्ली कोल्ड नॉर्मल. ठीक है. तो 3 या 4 Jan को सोचा, टेक्स्टेड अ फ्रेंड, बुक करी उसी वक्त एक प्लान ट्रिप, एक टूर जैसा. एंड देन वेंट ऑन टू 7 Jan. Damn bro, that is too quick.
At that point, I think you would have realized कि अब मैं ये भी कर सकता हूँ. हाँ मतलब it's like a freedom thing कि Hmm. it's a freedom to be honest to be like go on trips like these Hmm. कि तुम randomly सोच के बस चले गए. तो How was that a turning point? it was weirdly so refreshing for me. Hmm. मतलब मैं इससे पहले भी ट्रिप्स पे गया बहुत सारी. मेघालय आई थिंक वाज द सेकंड लास्ट वन. Hmm. इसके बाद मैं अपने बर्थडे पे गया हूँ ऋषिकेश में सब दोस्तों के साथ. Hmm. बट मेघालय वाज weirdly very calming क्योंकि it's a remote place to be honest. Hmm. तो वहाँ पे ऐसा शोर नहीं होता है. अगर तुम किसी जगह पे रह रहे हो एकदम यू कैन हियर दैट पिन ड्रॉप साइलेंस देयर. Oh. ठीक है तो एंड एक तरीके से आई जस्ट forgot about my phone and I was just there in the moment. Hmm. I was actually enjoying it completely. मतलब वो मैं लोगों से बात कर रहा हूँ उधर जो लोकल लोग हैं उनसे बात कर रहा हूँ आराम से. मतलब जस्ट वो चिड़चिड़ाहट नहीं थी. मतलब आई हैड लाइक वो पूरा ऐसा लगता है कि पूरा रीसेट हुआ मैं उधर जाके. मतलब इट वाज समथिंग अबाउट द प्लेस आई फील. How did you tackle the conversations with your manager? What did you tell them? उसके बाद how did you have those thought कि जब तुम्हें कहीं और ज्वाइन करना होगा तो I was having conversations with my manager a lot कि 1-2 महीने से बात चल रही थी मेरी कि यार I'm just not feeling it. मतलब मैं बहुत ज़्यादा burnt feel कर रहा हूँ. लाइक मेरा कोड करने का मन नहीं कर रहा. एंड he was actually really helpful कि थोड़ा सा मेरा let's say थोड़ा वर्कलोड मैनेज कर दिया मेरा. एंड जस्ट he was really helpful and I'm thankful for him also कि भाई उस बंदे ने इतनी हेल्प करी मेरी. आफ्टर अ पॉइंट वो लगा कि यार आई डू फील कि मैनेजर वॉज हेल्पिंग मी. आई जस्ट कुड नॉट कंटिन्यू क्योंकि आई फेल्ट कि आई वॉज हाफ हार्टेड भी नहीं था. मतलब उस वक्त this is not going anywhere. दिस इज नॉट गोइंग एनीवेयर. मतलब मेरा पढ़ने तक का मन नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा. एंड इट वॉज जस्ट कि लेट्स कॉल इट मतलब हो गया. एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड क्या बोलते लुकिंग आउट, मेरा सिंपल प्लान था अगेन पुट माई सेल्फ आउट देयर. It takes us back to communication. कम्युनिकेशन की फर्स्ट वाले एपिसोड में शूट किया कि पुटिंग माई सेल्फ आउट देयर, बाकी सब देख लेंगे. बिल्ड गुड प्रोजेक्ट्स. आई हैड उस वक्त मेरा ये थ्योरी था कि आई वांटेड टू गो इनटू डेटाबेस. मतलब मैंने DDI करके एक बुक पढ़ी थी विच ब्रॉट मी बैक टू द लेट्स से टू द गेम. जब मुझे लग रहा था कि भाई कोडिंग से ही मन उठ चुका है, आई पिक्ड अप दैट बुक एंड उस वक्त समझ में आया कि नहीं यार मैं बर्न आउट ही था. क्यूरियोसिटी है अभी भी. मतलब क्यूरियोसिटी है अभी भी. It feels so refreshing to do that एक पॉइंट पे. I feel मतलब एक अगर तुम कोई चीज को बिल्कुल ड्रॉप कर चुके हो and you think like कि ये कहीं नहीं जा रही थी and then you find the love for it back again. बहुत अच्छी फीलिंग है टू बी ऑनेस्ट. लाइक 2-3 महीने मैंने कुछ नहीं करा, बस घूमा फिरा मैं. एंड देन आई केम बैक टू रीडिंग इट. ऐसा लगा कि यार मतलब आई फेल्ट सो रिफ्रेश्ड एंड द लव फॉर द गेम वॉज बैक अगेन. तब मतलब वो लगा कि यार नहीं यार मतलब. एंड जब DDI खत्म करी ना, इट वॉज लाइक लेट्स से क्यू फॉर मी कि नहीं अब जा सकते हैं गेम में वापस. I think you took a sabbatical. That is one route to resolve that burnout which comes in. Do you have any other thoughts? If like because I don't think so. As you said, it's a privileged take, right? To take a sabbatical. Not everyone can do it. Do you have any other things in mind which you do now? I mean, after you have dealt with all of this to prevent burnout. I think एक चीज़ वो हो जाती है कि वन ऑफ द रीजन्स ऑफ बर्नआउट इज ऑल्सो कि आप अपने आप को खो देते हो उस पूरे प्रोसेस में ऑफ वर्किंग इन अ कंपनी. यू डोंट डू थिंग्स दैट यू लव टू डू. या स्मॉल थिंग्स कि शाम को तुम वॉक पे नहीं आ रहे, या तुम जो वीकेंड्स हैं उस पर क्रिकेट खेलने नहीं आ रहे सुबह सुबह दोस्तों के साथ अपने. इट्स वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स दैट एक्चुअली इम्पैक्ट योर मेंटल हेल्थ. कि तुम दोस्तों से नहीं मिल रहे हो तो these are very small things. If you're isolated completely तो it makes it worse, which I was actually here in Bangalore जब मैं था. I isolated myself, which is the completely the reverse thing that last thing you should do. हाँ. तो एक चीज इसके लिए which has helped me and I think we talked about it in the first episode is to keep a work log में तुम अगर लिखना शुरू करोगे तो you'll also have some things to be proud of, right? कि मैंने ये अच्छा किया और तुम्हें खुद दिखेगा कि भाई मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहा हूँ. अगर तुम्हें पैटर्न दिखना शुरू हो जाएगा कि भाई ये भी चीज़ें की. इट हेल्प मी अंडरस्टैंड लाइक व्हाट आर माई वर्क पैटर्न्स.
कि इस दिन मैंने इतनी मीटिंग करी, इस दिन मैंने ये किया, इस दिन ये हुआ, इस दिन ये हुआ. एंड इवन if I have done this for a week, I've seen like significant amount of visibility into what I'm doing. It वो किसी को शेयर करूँ ना करूँ, but even for me it has worked a lot. Another thing which I have seen is, do you do, like, how do you use your Google Calendar? Like, do you use to time block things a lot, or मैं यूजुअली यूज्ड फॉर मीटिंग्स, बट बीच में मैं ट्राई कर रहा था कि अच्छा आई हैव टू स्क्वीज सम लेट्स से सेल्फ लर्निंग टाइम. तो आई वाज लाइक अच्छा यहाँ पर डालते हैं, इसको यहाँ पर डालते हैं. बट इट डज नॉट वर्क्स फॉर मी. आई एम मोर ऑफ लाइक अ फ्लो काइंड ऑफ अ पर्सन कि एक फ्लो में आ गए, वी डू इट. मतलब फ्लो में चलता है मेरा. आई फाइंड इट रियली हार्ड टू, अच्छा मैंने 1 घंटे का ब्लॉक कर दिया, आई डू दैट लाइक अ सॉफ्ट कमिटमेंट टू दैट टास्क, लेकिन आई जस्ट गो विद द फ्लो. कि उस समय हो रहा है तो हो रहा है, बट एटलीस्ट इट सर्व्स एज अ रिमाइंडर कि हाँ ये करना है. हाँ. One thing which I started doing in between is, and I often do it sometimes, is I use color coding in Google Calendars a lot. Oh, nice. तो उसमें मैं क्या करता हूँ, what I started doing is, there are 2 kinds of tasks which happen with you in the day. Some are energy draining tasks, and then there are some energy gaining tasks. So what I used to do is कि अगर मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा, मतलब every meeting if I'm coming out of it and if I'm feeling कि भाई I need a break, right? If I'm feeling like that, that means I'm doing a lot of energy draining work, right? जो मेरी एनर्जी replenish नहीं कर रहा, but बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहा है. For example, this podcast is an energy gaining thing for me. Even if I am moving out of it, मेरे को ऐसा लगेगा कि भाई एक काम खत्म हुआ, ठीक है? It will not be like that. So what I started doing is I started marking things in my calendar and started coding them red and green. तो एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई नोटिस, जब मैंने देखा कि गूगल कैलेंडर में साइड में एक वो बन के आता है परसेंटेज कि तुमने कितना वो किया, तो दिस कलर कोडेड वहाँ पे. तो उसमें क्या होता है, अगर जैसे लंच है तो उसको मैंने येलो कर रखा है बिकॉज न्यूट्रल थिंग फॉर मी. ऑब्वियसली करोगे ही तुम, वो टाइम ब्लॉक होना ही है. बट फॉर मीटिंग्स आई स्टार्टेड पुटिंग रेड एंड ग्रीन इन देयर. सो मेरे को जब एक हफ्ते में दिख रहा है ना कि रेड ज़्यादा हो रहा है अब इस जगह पे, तो देन इट्स काइंड ऑफ अ रिमाइंडर. तो इट बिकम्स लाइक दैट. तो इट्स पार्ट ऑफ जर्नलिंग, बट वो कहीं ना कहीं उस तरह से स्टार्टेड giving me more visibility. It's a nice way to क्या बोलते हैं organize your day as well. हाँ. कि अगर आपकी 3 back to back energy draining हो रही है तो you move one to the next day. हाँ, मतलब तुम्हें पता चल जाएगा ना कि अब ये वाली मीटिंग भी ऐसे ही जाने वाली, ये वाली मीटिंग ऐसे जाने वाली, एंड तुम्हारा परफॉर्मेंस इज गोना लाइक डिप एनीवेज. तो तुम वैसे भी ए गेम लेके नहीं आ रहे हो, एंड व्हाई वुड यू वांना नॉट ब्रिंग योर ए गेम, राइट? ऑब्वियसली बात है वहाँ पे. आई थिंक ओवरवेल्म इज समथिंग व्हिच कैन क्रीप इन टू द बेस्ट ऑफ अस. It's something which is very common and very human, and I feel people should recognize and like find this earlier. And if you have to summarize what we talked about, I think recognizing is the first part of it. You have to figure out that you are in that, and I think you mentioned a lot of great points on it. कि सुबह उठने का मन नहीं कर रहा है तुम्हारा, like you have a lot of cynicism, going through the day is tough, right? And then the second part would be to like find and take steps to organize it. And I think एक बहुत बड़ी चीज़ आती है कि people don't talk about it. Like you talked about it to someone, right? And I think that helped you realize कि it's a common problem. It's okay. I think a lot of people who are watching this episode and who are seeing us talk about it maybe want to have a more open discourse about कि like is it a possible thing to do a sabbatical or a break, or am I in burnout? Maybe they would be thinking about it. And then the third part is definitely like building some habits which are like longer term, कि तुम किस तरह से organize कर रहे हो अपना time, and how are you talking about it to people. This is, I don't know how many people are stuck in burnout and that phase, and that is just stopping them from becoming like the best version of themselves. And not in just work, I think like in general, it just stops the blood flow like altogether कि भाई बहुत बहुत एनर्जी चाहिए हर चीज़ करने के लिए.